I am Gangesh and I had created a library management system in which I can buy a book, sell a book. Also, I can control all the users using a admin.py. So let's see the code. I have three main files: login and register, admin.py, and store.py. Store.py is a kind of user interface. Login and register, in this user can log in and register. If he is not registered, he can do by register, in which he had to enter for basic details like name, age, and set a password. In login.py, he can log in on the basis of his user id and password. Also, in store.py, this is a kind of main bookstore. In this, a user can borrow a book, return book, he can pay the rent or dues of the book. Also, he can buy a book, he can view all the books on the basis of its price, availability, and how much hype the book has in the market. In admin interface, I can see the users who have a lot of dues, like more than 500, and I can block them. I can add a book and increase price of that book. See that how this code is running, and in the next part 2 we are going to see the explanation of this code. First, I am going to tell you the overview of this. I had created 4 files: login and register, store.py, admin, and library management system. Login and register py deals with how a user can log in and register in my library. And store.py, this will contain all the necessary tasks like borrowing a book, selling a book, or paying dues, rent system, everything. Admin.py, it is an admin page in which I can block a user, I can add a book, I can increase price of a book. And library management py is a collection of all these. Okay, so without wasting time, let me run it. So what do you want to do? देखो अब यहाँ पे if I want to go to admin panel, मुझे यहाँ पे simply मैं टाइप कर सकता हूँ admin. But first मैं यहाँ पे register करके देखूंगा अपने आप को. Okay. In order to register, please enter the following details. So it will ask for my name and ask for my user ID. Set a password. Enter money. This money is treated as token. तो आगे आप कंफ्यूज ना, तो अभी बता दिया. जैसे मैंने 100 डाला ना, तो मेरी लाइब्रेरी के भाषा में 100 टोकन्स होने वाले हैं. ठीक है. ओके, तो 200 डालूंगा, 200. ओके, योर एज. अब अगर मैं यहाँ पे ना 5 या 6 एज डालूंगा तो ये बोलेगा नाबालिग्स आर नॉट अलाउड, और सीधा मेरा कोड एग्जिट कर जाएगा. ये काइंड ऑफ मैंने वो रख रखा है कि एज लिमिट भी, तो मैं यहाँ पे अपनी एक्चुअल एज डालूंगा 40. ओके, देखो ये चीज मुझे पहले से ही पता थी. Gangesh@87w, मैं आई हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड वन यूजर नेम. मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको. मैंने गंगेश नाम से ना ऑलरेडी एक आदमी को रजिस्टर कर रखा है. वेट, लेट मी ओपन इट. कहाँ गया ये? सी here, as you can see, Gangesh@87w, I had already registered a user, so I have to enter another user ID which is already not existed. मैंने already शायद 2 को register कर रखा है. Okay, मैंने Gangesh@992 और Gangesh@87w को while I was testing this code मैंने पहले register करके देखा है. तो मैं user ID चेंज कर दूंगा. नहीं, दूसरा नाम लेते हैं, mohan@87w. ठीक है, गंगेश के नाम से होगा. तो I am registered. अब मैं F5 दबाऊंगा. अब देखो क्या मेरा नाम इसमें सेव हुआ. वेट. ये देखो मेरा सारा डेटा JSON फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है. मोहन एट यूजर आईडी, नेम और नाम में तो गंगेश आ गया. इसने दोबारा नाम के लिए पूछा ही नहीं. ठीक है, नेम ये रहा, टोकन ये रहा, एज ये रहा, पासवर्ड, लास्ट लॉग्ड इन, रजिस्टर टाइम, इस टाइम पे मैंने रजिस्टर करा है. अभी तक क्या मैंने कोई बोरो बुक करी है? नहीं. नल मतलब नहीं करी. कि मैंने कोई जब बुक ही नहीं करी है तो बोरो डेट भी कुछ नहीं होगा. और बोरो पे डेट, ये तीन ना मैंने इसलिए यूज करा ताकि मैं रेंट पेइंग सिस्टम के लिए, तो इसको इग्नोर करना. और अबाउट बुक्स मैंने कितनी बुकें खरीदी अभी तक तो मैंने एक भी नहीं खरीदी. क्या मैं ब्लॉक दूं? नहीं. अगर मैंने एज अ एडमिन इफ आई ब्लॉक्ड यूजर देन यहाँ पे ट्रू आ जाएगा. अबाउट डेट तो ठीक है. ड्यूज मेरे कोई भी ड्यू नहीं है. ठीक है, देखो जैसे इसमें हम देख सकते हैं, इसमें बोरोड बुक ये है, मैंने ये बुक बोरो कर रखी है. बोरो डेट ये है, और मेरे पे मैंने बुक ये खरीद रखी है एक, और मेरे पे ड्यू एक भी नहीं है. ठीक है, ओके. तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए फिर से इसका रन करके मैं इसे अब लॉगिन करके देखने वाला हूँ. और लॉगिन करके हम स्टोर को चेकआउट करेंगे. लॉगिन, एंटर यूजर आईडी mohan@8700. एंटर योर पासवर्ड. अब पासवर्ड शायद मैं गलत ना हूँ, तो मेरा पासवर्ड था 99928. हाँ, यही है ना. हाँ, ओके. सो यू सक्सेसफुली लॉग्ड इन. मेरे पे इतने सारे ऑप्शंस हैं. ओके, सो फर्स्ट आई कैन बोरो अ बुक. आई कैन, अगर मैंने कोई बुक बोरो करी, वन थिंग कि मेरे पे अभी कोई भी बोरोड बुक है ही नहीं. मैंने अभी जस्ट फ्रेश रजिस्टर करा है, तो ऑफ कोर्स मैं रिटर्न, जब मैंने कोई बुक ही नहीं खरीदी तो मैं रिटर्न कैसे करूंगा? इस एग्जांपल देके समझता हूं. इफ आई हैव 10 रुपीस एंड समवन इज ऑर्डरिंग मी टू गिव 100 रुपीस, अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं उसे कैसे 100 पे करूंगा? तो इस केस में मैंने कोई बुक ऑलरेडी रेंट पे ले ही नहीं रखी और मैं रिटर्न बटन प्रेस करूंगा, देखते हैं क्या होगा. ठीक है, ओके. सो डू यू डोंट हैव एनी बोरोड बुक. इसने मेरे गया, इसने मेरी फाइल चेक करी, इसने मेरा डेटा चेक करा, डेटा में जाके देखा, अरे भैया इसने तो कोई बुक बोरो ही नहीं की है, तो रिटर्न क्या करेगा? सीधा प्रिंट कर देगा, यू डोंट हैव एनी बोरोड. अब मैं जाऊंगा, अब मैं पहले बुक बोरो करूंगा और फिर चेक करता हूं. तो सबसे पहले आई विल प्रेस 1. नहीं, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि कितनी बुक्स हैं मेरे. देखो 5 6 7 ये इनके थ्रू मैं चेक कर सकता हूं कि प्राइस वाइज, लाइक 5 बुक्स हैं और उनका प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मुझे ऑर्डर वाइज उनका प्राइस मिलेगा. हाइप क्या है पहले वो बता देता हूं. हाइप क्या है कि व्हेनेवर आई विल बाय अ बुक, मैंने बुक नाम के जेसन के अंदर एक वो बना रखा है हाइप नाम से, उसमें 5 प्लस हो जाएगा. ये इंडिकेट करता है कि बुक की सेल्स कितनी. अगर बुक की सेल्स ज्यादा है तो हाइप ज्यादा होगा, बुक की सेल्स कम है तो हाइप कम होगा. ठीक है, तो मैं अरेंज कर सकता हूं कि बुक कितनी बिक रही है और कितनी बुक स्टॉक में है. ठीक है, यहां पे स्टॉक सिस्टम भी है बाय द वे. एंटर योर चॉइस. मैं चेक करना चाहता हूं कि कितनी अवेलेबल बुक्स. सो आई विल प्रेस 8. अवेलेबल बुक्स कौन-कौन सी है ये देखो.
रिच डैड पुअर डैड साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये हाई पे, मतलब ये बुक इतनी ज़्यादा बिक रही हैं आजकल। सबसे ज़्यादा किसकी है? ओके, विंग्स ऑफ फायर। सो नहीं, मैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम खरीदना चाहूँगा तो मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे को जाना है सर्च बुक में, इस बुक का इन्फो देखना चाहूँगा। आई विल प्रेस 9, एंटर बुक नेम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके, वी डोंट हैव दिस बुक राइट नाउ, पर ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट, मैंने शायद कोई गड़बड़ी कर दी होगी। ओके, फिर से, ओके, इसकी तो हाइप 0, थोड़ी अच्छी बुक लूँगा, द हॉबिट। मैंने शायद स्पेस का कुछ लोचा कर दिया होगा। ओके, सो आई विल गो फॉर 9, एंटर बुक नेम, द हॉबिट्स, एंटर। ओके, सी वहाँ पे ना मैंने स्पेस ऐड कर दिया था, यहाँ पे मैंने गलती से स्पेस ऐड कर दिया था, तो इसने वो बुक रीड ही नहीं करा। ये चीज़ मुझे फिक्स करनी चाहिए बाय द वे। ओके, वी हैव दिस बुक, बोरो प्राइस 7 रुपीज़ है, बुक का प्राइस 350 है और बुक की हाइप 60 है। तो मुझे अब ये बुक खरीदनी है, मुझे बुक अच्छी लगी, तो मैं खरीदने के लिए 4 दबाऊंगा। एंटर अ बुक नेम दैट यू वांट टू बोरो, यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे बाय लिखना था मेरे को, बाय द वे। ओके, सो द हॉबिट। ओके, वी हैव दिस बुक फॉर 350, बोरो प्राइस इज 7। अब मेरे को अगर ये बुक खरीदनी है तो मुझे यस टाइप करना पड़ेगा, और मैं नहीं खरीदना, कोई भी की प्रेस कर सकता हूँ, तो मैं यस करूँगा। एंटर 350। अगर मैं कम मनी डालता हूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली बोलेगा कि भैया नहीं, इनसफिशिएंट मनी, मुझे और पैसे चाहिए, इतने में नहीं खरीदूंगा। इफ आई एम एंटरिंग मनी 400, अरे मेरे को चेंज मिलेगा, ये लो भैया अपने छुट्टे ले लो 50 रुपये। ये थी मेरे को सही। और बाय द वे यहाँ की करेंसी टोकन्स हैं। ओके, तो मैंने बुक भी ले ली, बुक भी खरीद ली। अब मैं अगर चेक करूँ ना यूजर सर्च जेसन में, तो ये सब सेव भी हो रहा होगा। वेट, इसे मिनिमाइज करता हूँ पहले। कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। देखो, लगता है अभी सेव नहीं हुआ। ये क्या हो गया ये? तो अब ये मेरे से पूछा मुझे क्या करना है। अब मेरे को ना बुक रेंट पे लेनी है। वन, एंटर बुक विच यू वांट टू बोरो, मुझे बोरो करना है क्लास 9 साइंस की बुक। कंट्रोल सी, क्लास 9 साइंस। ओके, प्रेस। ओके, इस बुक का प्राइस इतना है, बोरो प्राइस 7 रुपीज़ है, मुझे ये बुक बोरो करनी ही है, यस प्रेस करूंगा। अब इस केस में पता क्या हो रहा है, सबसे पहले चेक कर रहा है कि क्या मैंने अभी तक कोई बोरो की है, कोई बुक चेक करेगा। अगर मैंने अभी कोई बुक बोरो की है तो मुझे ये अलाउ ही नहीं करेगा कोई बुक बोरो करने को। फिर जाके चेक करेगा कि क्या मेरे पे ड्यूज है, कि क्या मैंने किसी बुक का रेंट मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रेंट 0 है अभी, तभी मुझे बुक बोरो करने को अलाउ कर रहा है। अगर मेरा रेंट 0 नहीं होता तो ये मुझे नहीं करने देता। तो मैं 7 प्रेस करूंगा, एंटर प्राइस ऑफ बुक। ओके, थैंक्स फॉर यूजिंग आवर लाइब्रेरी। मैंने एक बुक बोरो कर ली है। अब अगर मैं चाहता हूँ वापस से एक बुक बोरो करने के लिए, तो ऑफ कोर्स ये मेरे को मना कर देगा। ठीक है, प्लीज क्लियर द ड्यूज सर। इसका मतलब है कि मैंने ऑलरेडी बुक बोरो कर रखी है, मैंने यहाँ पे रीयूजेबल फंक्शन यूज करता, तभी यहाँ पे ऐसा बोल रहा है प्लीज क्लियर द ड्यूज सर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जेसन में जाके ना चेंज करने वाला हूँ टाइम को, अभी बताता हूँ। द मेन थिंग इज स्टिल लेफ्ट, और हम उसमें देखने वाले हैं कि कैसे मैं किसी को रेंट देने के लिए बोलता हूँ, एंड हाउ आई एम हैंडलिंग एडमिन पेज इन ऑर्डर टू ब्लॉक समवन विथ मोर ड्यूज। मैं किसी को कैसे ब्लॉक करूँगा जिस पर ड्यूज आता है। और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ।